یہ ان دنوں کی بات ہے جب والد صاحب ناگائنی ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئے اور ہم اس دنیا میں بے یارو مددگار رہ گئے۔ گھر کا سربراہ اور واحد کفیل نہ رہا تو حالات بہت خراب ہو گئے۔ ہم 4 بچوں کے اخراجات اٹھانا اکیلی ماں کے بس کی بات نہ تھی، جبکہ وہ پڑھی لکھی بھی نہ تھیں، صرف محنت مزدوری ہی کر سکتی تھیں۔ مجھے اور میرے بھائی احمد کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان دنوں احمد بھائی 6ٹھی جماعت میں اور میں 5ویں میں تھی جب ہم کو اسکول چھوڑنا پڑا۔ حالانکہ احد تو پڑھائی میں اول نمبر تھا، لیکن ہم مجبور تھے کہ گھر میں فاقے ہو رہے تھے۔ جس دن ہم بہن بھائی آخری بار اسکول گئے تو واپسی میں تمام رستہ روتے آئے تھے کہ اے کاش نہ ہمارے ابو مرتے اور نہ ہم کو اسکول کو خیر باد کہنا پڑتا۔ دوسرے روز احمد بھائی گھر سے نکلے اور سیدھے بس اڈے پر چلے گئے۔ مجھ کو کہا تھا کہ وہاں مسافروں کا سامان الفاٹنی کے کچھ پیسے مل جاتے ہیں، شاید مجھے بھی ایسی کوئی آسان مزدوری مل جائے۔ ان دنوں احد کی عمر صرف 11 سال تھی۔ سارا دن وہ بس اڈے پر بھاگ دوڑ کرتا رہا، لیکن کسی مسافر نے اسے سامان اٹھانے کے لیے نہ بلایا۔ شام ہو گئی تو بھوکا پیا سامنا لٹکا کر واپس آ گیا۔ اس دن کھانے کو گھر میں کچھ نہ تھا۔ ماں پڑوس میں الفادیار مانگنے گئی تو پڑوسن نے بھی انکار کر دیا کہ روز روز کون کسی کو ادھار دیتا ہے جبکہ واپس لوٹانے کی کوئی امید نظر نہ آتی ہو۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ مدد کر لو تو میں تم کو کچھ آٹا اور آلو دے دوں گی، گھر جا کر آلو ابال لینا اور روٹی پکا لینا، کل کی صبح کا اللہ مالک ہے۔ البتہ اگلی صبح بھی ویسی ہی سونی سونی آ گئی جیسی کہ گزشتہ صبح تھی۔ وہ دوبارہ بس اڈے چلا گیا، شاید آج کوئی کام وہاں مل جائے۔ شام تک بھاگ دوڑ کرنے کے بعد اسے صرف 2 مسافروں نے بلایا۔ ان کا سامان اٹھا کر ٹیکسی میں رکھوانا تھا۔ وہ بمشکل 20 روپے کما پایا۔ بھلا 20 روپے سے کیا گھر کا گزارا چلتا؟ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ تیسرے روز بھی وہ بس اڈے جا پہنچا۔ اب کی بار دوپہر تک بھی کسی نے منہ نہ لگایا تو وہ نہ جانے کیا سوچ کر شہر جانے والی ایک لاری میں چڑھ گیا۔ ٹکٹ کے پیسے بھی پاس نہ تھے، لیکن وہ ایک معصوم صورت، فاقہ زدہ، مفلوق الحال 9 عمر لڑکا تھا، شاید اسی لیے اس سے کسی نے کچھ نہ کہا۔ جب بس شہر پہنچی تو وہ لاری سے اتر گیا۔ وہ شاید اس امید پر شہر گیا تھا کہ اس نے سنا تھا وہاں چھوٹے لڑکوں کو آسانی سے کام مل جاتا ہے، جبکہ گاؤں میں تو مزدوری بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ ہر قسم کی محنت اور مزدوری کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ شہر میں تو اس کا کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے، اسے کون نوکری پر رکھے گا اور کیا مزدوری ملے گی۔ وہ پہلی مرتبہ آیا تھا اس شہر کی سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں، مارا مارا پھرنے لگا۔ بھوک سے برا حال تھا اور حالت قابل رحم تھی۔ تبھی وہ ایک شخص کے پاس گیا اور کہنے لگا، مجھے کام چاہیے تاکہ کچھ کما کر کھانا لے سکوں۔ اس شخص نے احد کو غور سے دیکھا، پھر بولا، آؤ میرے ساتھ۔ رستے میں وہ اس سے باتیں کرتا گیا۔ اس آدمی کا نام رحیم بخش تھا اور اس کا گھر لاری اڈے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے احد سے اس کے گھر یلو حالات پوچھ لیے، جبکہ حالات بتاتے ہوئے احد رو رہا تھا۔ رحیم بخش نے اس کو تسلی دی اور کہا، سنو بیٹے، 6 برس قبل میرا بیٹا کھو گیا تھا۔ اس کی صورت کچھ تم سے ملتی ہے۔ جیسا میں کہوں تم ویسا ہی کرو تو تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے دن پھر سکتے ہیں۔ پھر رحیم بخش نے بتایا، میری بیوی اپنے بیٹے کے غم میں نیم پاگل ہو چکی ہے۔ وہ اس کی جدائی میں رو رو کر اپنی بینائی کھوتی جا رہی ہے۔ نہ جانے کس ظالم نے میرے بچے کو اغوا کر لیا۔ وہ اسکول گیا تھا اور واپس نہ آیا۔ میں نے بہت تلاش کیا ہے۔ میرے بیٹے کا نام سمیع اللہ تھا۔ بیٹا اب وہ تو کھو چکا، لیکن اب فکر مجھے اپنی بیوی کی ہے جس کی حالت کسی طور نہیں سنبھلتی۔ تم اگر سمیع اللہ بن جاؤ تو میں بیوی کو یہی کہوں گا کہ تیرا کھویا ہوا بیٹا مل گیا ہے۔ اس کی حالت سنبھل جائے گی تو میرا بکھرا ہوا گھر بھی سنبھل جائے گا۔ تم میرے گھر پر میرا بیٹا بن کر رہنا منظور کر لو، میں تم کو پڑھا لکھا دوں گا۔ اس طرح میری نیم جان بیوی شاید ٹھیک ہو جائے، ورنہ میری 2 بچیاں بھی رول جائیں گی جو ماں کی اس حالت سے از حد پریشان اور متاثر ہو رہی ہے۔ لیکن میں تو اپنی بیوہ ماں، بھائی اور بہنوں کی خاطر گھر سے کمانے نکلا ہوں، پھر ان کا کیا بنے گا؟ اس کی تم فکر نہ کرو۔ تمہارے گھر فاقے ہو رہے ہیں۔ تم ابھی چھوٹے ہو، اتنا نہیں کما سکتے کہ گھر کے اخراجات پورے کر سکو۔ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اور میں صاحب جائیداد بھی ہوں۔ ہم چل کر تمہاری والدہ کو سمجھا لیں گے۔ ہر ماہ باقاعدگی سے میں ان کو خرچہ بھیج دیا کروں گا۔
इस तरह तुम यहाँ पढ़ लिख जाओगे और वहाँ गांव में तुम्हारी माँ और बहन भाई भी सिक्का सांस ले सकेंगे। यूं समझ लो कि तुमको उम्र भर के लिए एक अच्छी और मुस्तकिल नौकरी मिल गई है। अच्छा खाना, अच्छी रहाइश, घर और घर वालों की मोहब्बत, और क्या चाहिए तुमको। भाई तो नादान था, ये ना समझा कि ये शख्स उसे खरीद रहा है। उसने फौरन हामी भर ली और कहा, ठीक है, अब मेरी उम्मी को समझा दे, मैं आपके पास रहूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, और अब मेरे घर वालों को खर्चा भिजवा दिया करें। अहमद तो हर हाल में हमको फाकों से बचाना चाहता था, और गांव में इतनी मजदूरी का मलना मुहाल था कि घर के अखराजात चलीं और हम सब पढ़ लिख भी सकें। अहद ने सिक्का सांस लिया, क्योंकि रहीम बख्श ने हमारे घर आक्रामी को सूरत हाल बताकर राजी कर लिया था। ये भी कहा कि हर ईद पर ये आकर अब से मिल जाया करेगा। बेटे के खो जाने से अभी तक उनके घर की फिजा सोगवार और उदासी में डूबी हुई थी। रहीम बख्श खुश खुश मेरे भाई को घर में ले गया और बीवी को बताया कि आओ देख, तुम्हारा खोया हुआ बेट मिल गया है। औरत दौड़ी आई, उसने अपनी बीमार आंखों से बगौर मेरे भाई को देखा। वो वाकई आंसू बहा बहा कर नीम बिनाई खो चुकी थी और अब इसे दायनदिला नजर आता था। इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े हुए थे। आते ही वो मेरे भाई से लिपट गई और मीर्स में कहकर गिले से लगा लिया। उसने शौहर की हर बात का यकीन कर लिया। शायद कि वो गम के भंवर में गौते खाकर थक चुकी थी और अब हर सूरत किनारे लगना चाहती थी। डबडबाई आंखों से ऐसे देख रही थी जैसे कि उसके खोए हुए बेटे की शक्ल भी इसके आंसुओं में डूब चुकी है। इसको इस यकीन के सिवा और कुछ नहीं सूझ रहा था कि जो लड़का उसकी निगाहों के सामने खड़ा है वो इसका खोया हुआ बेटा ही है। रहीम बख्श अच्छी अदाकारी कर रहा था। उसने बीवी से कहा कि अपने बच्चे को खाना तो दो, इतने बरस बाद मिला है, तब तक मैं इसके लिए बाजार से कपड़े और दूसरा सामान खरीद कर लाता हूं। औरत ने बेटी से कहा, सायमा जल्दी भाई को खाना ला कर दो। मैं वारी जाऊं, कितना बदल गया है मेरा बच्चा, शायद के खरकारों के पास रहा है। हाँ माँ, मुझे खरकारों ने ही उठाया था। पुलिस का छापा पड़ा और बच्चे भी उनसे आजाद हुए, शायद अपने घर पहुंच गए होंगे। बहुत से बच्चे थे मेरे साथ कैंप में, जहां हम मिट्टी डेवती थे और काम करते थे। ये सुनकर बेचारी माँ की सिसकियां निकल गईं। अब रहीम बख्श की बीवी रफ्ता रफ्ता अफसुर्दगी की कैफियत से निकलने लगी। फिर वक्त के साथ साथ इसकी ज़हनी और जिस्मानी हालत बेहतर होने लगी। वो अहद से अक्सर तरह तरह के सवालात करती। कैसे खो गए, किसने वरगलाया, कौन अलिफाटे कर ले गया, तुम तो स्कूल गए थे, वहां क्या क्या हुआ। रोज वो शब की दास्तान वो सुनना चाहती थी। जब अहमद खामोश रहता तो रहीम बख्श बीवी को समझाता, खुशकिस्मत, शुक्र कर तेरा बेटा मिल गया है। इसको उन गुजरे हुए अजियत भरे दिनों की बार बार याद न दिलाया करके इसकी जबान भी गुंग रह जाती है। न जाने उन जालिमों ने कितनी माओं के जिगर नोचे होंगे और वो दुख सबा सबा कर गूंगे हो गए होंगे। खुदा जाने वो अपनी माओं से मिल भी सके कि नहीं। हम खुशकिस्मत हैं कि पुलिस वाले मुझे जानते थे और मैं वक्तन फवक्तन बेटे की गुमशुदगी के बारे उनसे इस्तिफसार करता ही रहता था। जब इनके हाथ आया इसको मेरे सुपुर्द कर दिया। अगर मैं उसकी तलाश छोड़ देता तो आज ये हमको ना मिलता। रहीम बख्श ने अहद भाई से क्या वादा पूरा किया। वो शख्स हर माह माकूल रकम उम्मी जान को मनी ऑर्डर कर दिया करता था, जिससे हमारे घर का चूल्हा जलने लगा और मेरे दोनों छोटे भाई दोबारा स्कूल जाने लगे। रहीम बख्श की बीवी सच सच अहद को अपना समझकर चाहने लगी। इसी तरह प्यार करती जैसे कोई माँ अपने बेटे से करती है। लेकिन अहद बिल्कुल चुप चुप रहता था। दरअसल उसे अपनी माँ और बहन भाई बहुत याद आते थे, जिनकी खातिर उसने ये कुर्बानी दी थी कि रकम के बदले हमारी जुदाई खरीद ली थी। महल्ले में भी ज्यादा किसी से बात न करता, सब उसको समी अल्लाह के कर बुलाते और वो भी अपना यही नाम बताता। लोग कहते खरकारों ने बच्चे पर कितना जुल्म किया है कि बेचारा बोलना भी भूल गया है। महल्ले के बहुत से लोग मुबारकबाद देने आए कि रहीम बख्श, तुमको तुम्हारा बेटा मिल गया है, खैरात करो और मुबारकबाद कबूल करो, तुम तो खुशकिस्मत हो, वरना ऐसा नहीं होता। 6 साल बाद खोए हुए बच्चे का मिल जाना एक मौजिज़ा ही तो है। रहीम बख्श के घर मेरे भाई के अर्द गिर्द कुछ रिश्तेदार लड़कियां भी जमा रहती थीं। वो जब आते इससे बातें करने की कोशिश करते। उन्हीं में से एक नायला थी जो बहुत ज्यादा अहद में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसका घर पास ही था। नायला रहीम बख्श की बीवी की भतीजी थी। वो फूफी की लड़कियों से मिलने के बहाने आती और अहद के पास बैठ जाती।
वो बातें करती मगर भाई इसे जवाब ना देता। तब वो कहती क्या तुम गूंगे हो कि टस से मिस नहीं होते। वक्त गुजरता रहा। बिलाखिर नायला ने आना छोड़ दिया तो अहद को उसकी कमी महसूस होने लगी। शायद कि इसकी दिलचस्प बातों से मेरे भाई का दिल भी बहल जाता था। रोज गिली में निकलकर इधर अलिफादेर देखता। आखिर एक रोज वो नजर आ गई। तब अहद ने इसे पुकारा और पूछा कि अब तुमने आना क्यों छोड़ दिया है। उसने जवाब दिया, क्यों, क्या मेरे न आने से तुम आदास हो गए हो। हाँ, अहद ने कहा। वो बोली, तो फिर तुमको मुझसे मोहब्बत हो गई है। दरअसल मैं अब बड़ी हो गई हूं और तुम भी, इसलिए उम्मी ने मुझे रोक दिया है कि अब ज्यादा प्यो के घर मत जाया करो वरना लोग बातें बनाएंगे। फिर एक दिन इसने मां से सुना कि मैं अपने समी की शादी नायला से करूंगी। ये इसके बचपन की मंग है। तब अहद ने दिल में पहली बार खुशी की लहर महसूस की क्योंकि जब से वो रहीम बख्श का बेटा बना था 4-5 बारी घर आया था, वो भी चंद घंटों के लिए। रहीम इसे साथ लाया और साथ ले गया। मेरी मां तो बेटे की राही तकती रह जाती, लेकिन क्या करती, पेट का दोज़ख भरना भी तो एक मजबूरी थी। अहद मगर ज्यादा उदास रहता था। रहीम बख्श के घर वो 6 बरस रहा। इस दौरान उन्होंने घर पर ही अतालीक रख दिया। स्कूल नहीं भेजा क्योंकि रहीम की बीवी इसे खौफ से स्कूल नहीं भेजती थी कि कहीं कोई फिर से इसे अगवा न कर ले। वो रहीम बख्श के बगैर गांव भी ना आ सकता था। इसका दिल अब तक वहां ना लगा था। अहद को हम सब बहुत याद आते थे, बस एक समझौते के तहत वक्त गुजार रहा था। अगर वहां कोई हस्ती इसके लिए पर कशिश थी तो वो सिर्फ नायला की जात थी, जो छोटी सी उम्र में बड़ी बड़ी बातें करती थी और उसके साथ बातों बातों में लगावट का इजहार भी करती थी। इसी वजह से इसका वहां दिल लग गया था। अलिफादेर रहीम बख्श की बीवी बावर कराती कि मेरे बेटे, बहुत जल्द नायला तेरी दुल्हन बनकर हमेशा के लिए हमारे घर आ जाएगी। उम्मी को मनी ऑर्डर तो बाकायदगी से मिल जाते थे, लेकिन इस रकम की भी उन्होंने बेटे से मुस्तकिल जुदाई की सूरत में बड़ी कीमत चुकाई थी कि बेटे की सूरत देखने को उनकी आंखें तरसती थी। अहमद को गांव में हमारी तरफ खत लिखने की इजाजत न दी थी, मगर रहीम खुद खत लिखकर अहद की खैर खैरियत तहरीर करता था और जब मेरी मां जवाब भेजती तो वो अहद को उनका खत पढ़वा देता। यूं मेरे भाई को अपने घर वालों के बारे तसल्ली मिल जाती थी। अहद सोचता था, 1-2 साल बाद जब और बड़ा हो जाऊंगा तो छप कर मां से मिलकर आ जाया करूंगा। दिल की इसी तसल्ली के सहारे 1 साल और गुजर गया। अचानक एक रोज धमाका हो गया। रहीम बख्श को हकीकत में उसका असली खोया हुआ बेटा मिल गया। अब इस घराने को मेरे भाई की जरूरत ना रही थी। मां जो पहले अहद को नायला से ब्याहने के ख्वाब देख रही थी, जो अहद से सगी मां की तरह मोहब्बत करने लगी थी, वो भी अब बदल गई थी। वो अपने बेटे को गिले लगाती और अहद इसे देखकर हैरान होता। ताहम अहद को भी दाके देना न चाहती थी क्योंकि मेरा भाई भी इस नई मां से मोहब्बत के रिश्ते में बंध चुका था। बहरहाल हकीकत तो हकीकत होती है। अब कहानी का अंजाम करीब हो गया। भाई इस कदर अफसुर्दा न होता अगर नायला की जात दरमियान में न होती, क्योंकि ये एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। दोनों ही खुश थे कि अनकरीब शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अहद इस रिहाई पर खुश था मगर नाखुश भी क्योंकि इसकी शादी नायला से नहीं हो सकती थी। रहीम बख्श के कारोबार और उसकी असल जायदाद का वारिस समी अल्लाह वापस आ चुका था। इन लोगों ने अहद और नायला की मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। नायला की शादी की तैयारियां होने लगीं। इसके आंसुओं को किसी ने न देखा क्योंकि अहद इसकी फूफी का लड़का नहीं था, ये साबित हो गया था, और ये भी कि वो गांव का एक गरीब लड़का है, लिहाजा अब दूल्हा तो समी अल्लाह ही को बनना था। मेरा भाई नायला और समी की शादी के एक दिन बाद घर वापस आ गया। हमेशा के लिए ये दिन मेरी माँ और हम सब बहन भाइयों के लिए रोज ईद था। माँ तो ऐसे खुश थी जैसे मुद्दतों बाद इसका खोया हुआ बेटा मिल गया हो। अहद भी फिर कभी लूट कर रहीम बख्श के घर न गया। अलबत्ता रहीम और उसकी बीवी 1-2 बार मिलने को हमारे घर आए और मेरे भाई के लिए कुछ तहाइफ भी लाए थे। इसके बाद वो भी फिर कभी ना लूटे। हम उनके लिए और वो हमारे लिए किस्सा पारीना बन गए। अहद को आज भी दाके है कि दुनिया कितनी जल्द आंखें बदल लेती है, मगर मेरी माँ खुश है कि इसका खोया हुआ बेटा इसे मिल गया है।